Good morning, student. Online में Good am I? morning, sir. Yes. Thank you for your confirmation. Okay. So what we discussed in last lecture? Anybody? लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? किसी को याद है या छुट्टी आई तो भूल गए? है ना, भूल गए। कौन सा एग्जाम्पल किया था? Step deviation method. Okay, so in last lecture we have discussed the fitting of the straight line by using the step deviation method. Okay, so you can see on your screen, in this we have completed fitting a straight line y is equal to a plus bx and normal equation with both the method. Number one is general method, simple method, and number two for the step deviation method. When your data is very high, then you can use the step deviation method, or otherwise you can go with the simple usual method. Now today we are going to discuss about the third topic, that is the fitting a parabola y square is equal to a plus bx plus cx square. Means if you have the data of x and y and how to fit it into the parabola. So we will going to discuss about this. So you can see here the next topic is non-linear curve fitting. Okay, non-linear means your power of the x will be more than 1, that is the non-linear. Okay, so here you can see the equation of the parabola is second degree polynomial curve given by equation y is equal to ax square plus bx plus c. Means if you have the equation like this, y is equal to ax square plus bx plus c, so how we can fit our data in this form? Okay, in this quadratic polynomial form. Okay, and that is our parabola form, क्योंकि y is equal to ax square क्या होता है? पैराबोला होता है, ये सुनो। लेकिन यहाँ पे प्लस बी एक्स प्लस सी भी आप उसके साथ ले तो भी वो पैराबोला ही देंगे। ओके, तो उसको फिट करना है हमारे डेटा में। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए क्या करते थे हम? एनीबडी, एनी आइडिया? नॉर्मल इक्वेशन कैसे डिराइव करते थे? यस, कोई आइडिया है नॉर्मल इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक, y is equal to ax square plus bx plus c. Now I want to fit this curve, वही है ना, ax square plus bx plus c। कोई भी इक्वेशन में आपको फिट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोलो, समेशन में उसको ले लेते हैं। तो ये तो सिंपल हमारा y है, तो फर्स्ट अगर मैं समेशन में ले लूं तो क्या हो जाएगा? देखो, समेशन i इक्वल टू 1 टू n, फॉर एग्जांपल आई हैव द n डेटा, सो यहाँ पे yi हो जाएगा। यहाँ पे समेशन i इक्वल टू 1 टू n, a कांस्टेंट है हमारा, axi स्क्वायर हो जाएगा, प्लस समेशन i इक्वल टू 1 टू n b इंटू xi हो जाएगा, प्लस समेशन i इक्वल टू 1 टू n c हो जाएगा। यस और नो? ये मैंने क्या किया? फर्स्ट उसको नॉर्मल इक्वेशन में ले जाने के लिए उसको yi फॉर्म में ले आया, समेशन फॉर्म में। इज इट ओके ऑनलाइन में? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. Then you can see summation I equal to 1 to n, yi में no change, but here you can put a outside. So a outside, summation I equal to 1 to n xi square, plus b is outside, so summation I equal to 1 to n xi, plus यहाँ पे c आउटसाइड, समेशन i इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे 1 बचेगा। अब समेशन ऑफ 1 क्या होगा? बोलो, n है ना, यस और नो? तो यहाँ पे हम सिर्फ हमको मिलेगा समेशन i इक्वल टू 1 टू n yi इज इक्वल टू a समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi स्क्वायर प्लस b समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi प्लस c इंटू n, बिकॉज
summation I equal to 1 to n, 1 is equal to n, and this is your normal equation number 1. Is it okay? Everybody understand? Online में is it okay? Yes, sir. Okay. Offline में कोई doubt? Okay. Now second, how to derive second equation of the नॉर्मल फॉर्म. तो किसे करना है? देखो अब यहाँ पे y है तो आपको है ना, जब भी आपको फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ax प्लस b था तो हमको दो इक्वेशन मिलते थे. कैसे? एक तो समेशन ऑफ y वाला है ना, yi वाला, एंड सेकंड समेशन ऑफ yi इंटू xi. क्यों? क्योंकि हम कितने पावर तक जा सकते हैं x के? 1 पावर तक. तो y का सिंगल x रेज टू 0 वाला पावर, फिर y इंटू एक्स दैट मीन्स 1 वाला पावर. तो सिमिलरली यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर के लिए जाना है तो थर्ड एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा? y इंटू एक्स आई स्क्वायर. तो आपको अब क्या करना है? ये तो आपको मिल गया, देखो समेशन ऑफ y मिल गया कि नहीं. अब सेकंड डिराइव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये इक्वेशन स्टार है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? x से. यस और नो? या फिर ये इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो भी चलेगा क्योंकि वही का वही तो है, समेशन फॉर्म में से. यस और नो? अंडरस्टैंड? तो मैं फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन डबल स्टार है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय एक्स आई करता हूं. ओके, अंडरस्टैंड? सेकंड डिराइव करने के लिए तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन डबल स्टार बाय एक्स आई. तो व्हाट वी गेट? समेशन आई इक्वल टू 1 टू n xi इंटू वाई आई इज इक्वल टू, या फिर वाई आई इंटू एक्स आई, जो भी लिखो, समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, ए में बाहर लिख दो डायरेक्ट चलेगा ना, है? और यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई क्यूब प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, बी मैंने बाहर रख दिया तो यहाँ पे एक्स आई इंटू एक्स आई हो गया एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा. सी मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया, यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स आई आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द सेकंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. यस और नो? एनी डाउट इसमें किसी को भी? ऑनलाइन में इज इट ओके? ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? कार्तिक, विकास, विजय, पार्थिव, ऋषभ, पार्थ, निश्चल, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो. ओके, चलो सेकंड इक्वेशन मिल गया. अब थर्ड के लिए मुझे क्या करना था? जो ये इक्वेशन स्टार डबल स्टार है उसको मैं एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा. ओके, तो मेरा सेकंड पावर तक जाएगा. ओके, तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट में क्या करना है? मल्टीप्लाई, या फिर दूसरा क्या कर सकता हूँ? दूसरी पॉसिबिलिटी, जो ये इक्वेशन 2 मिला है उसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई करूँ तो भी चलेगा, दोनों सेम ही चीज है ना. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय एक्स आई अगेन, है ना, ये हम सेकंड टाइम कर रहे हैं. समेशन आई इक्वल टू 1 टू n वाई आई इंटू एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई रेज टू 4, है ना, प्लस बी समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई क्यूब, ओके, प्लस सी summation I equal to 1 to n xi square. So this is your equation number 3, normal equation number 3. So is there any doubt, any question in normal equations of the parabola or non-linear? Anybody? है ना? So we will use these 3 equations for the fitting of the data. Okay, जैसे हमने straight line में किया था ऐसे ही. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको कौन कौन सी चीज फाइंड करना पड़ेगा टेबल में, तो यहाँ से हम फिक्स कर देते हैं. तो देखो सबसे पहले तो आपके पास वाई आई एंड एक्स आई होगा. यस और नो? है ना. तो वाई आई एंड एक्स आई से नंबर 1 मुझे ये मिल जाएगा एंड नंबर 2 मुझे ये मिल जाएगा. यस और नो? क्लियर? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो एक्स आई था उसका स्क्वायर करके उसका एडिशन करूंगा, दैट इज माई नंबर 3 एक्स आई स्क्वायर वाला. ओके, अब ये मेरे 1 2 3 तीनों ही तीनों मिल गए तो इक्वेशन 1 में तो मेरा सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि n तो मेरे नंबर ऑफ
डेटा है वो तो इजीली मिल जाएगा। अब नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखो xi इंटू वाई है, तो दैट इज माई नंबर 4, तो मुझे ये चाहिए। क्यूब दैट इज माई 5th, है ना। फिर ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया है थर्ड में, तो उसी को यूज कर लेंगे, तो फिर से करने की जरूरत नहीं। ये भी हमने 2 में कर दिया है, तो वो भी हमको जरूरत नहीं। 6 में क्या करेंगे, देखो अब ये नहीं है हमारे पास, तो इसको मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो 6th कॉलम इसका होगा, फिर 7th इसका होगा, है ना। अब xi क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे हमने फाइंड करके रखा है, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। xi स्क्वायर भी ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो आपकी कितनी कॉलम होगी, 7th कॉलम होगी। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। तो 7 कॉलम वाला आपको टेबल बनाना है, जो भी डेटा है, और उसको इंडिविजुअली फाइंड करके फिर ये तीनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके 3 इक्वेशन को सॉल्व करना। दैट इज योर टारगेट और दैट इज योर एम टू फिट योर कर्व। ऑनलाइन में इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एनी डाउट? No, sir. Okay, so we go for the first example. So you can see your first example, fit the least square. आपको ऐसे स्टेटमेंट दिया होगा, fit the least square parabola. least square parabola means हम कहाँ तक जा रहे हैं, स्क्वायर तक जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? उसका लीस्ट पावर कितना है, स्क्वायर तक, दैट मीन्स, और वो हमको पैराबोला को फिट करने के लिए बोला गया है। तो लीस्ट स्क्वायर पैराबोला टू द गिवन डेटा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उन्होंने लिया है हमारे से उल्टा। देखो यहाँ पे a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, उन्होंने क्या किया, कांस्टेंट को सिर्फ शिफ्ट किया। तो जैसे ही आप एज्यूम करते हो, अकॉर्डिंगली आपके नॉर्मल इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं ये नहीं ले रहा हूं और अभी हमने जो डिस्कस किया वही ले रहा हूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये जो है उसके थ्रू में मैं जा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, होमवर्क में हमने जो डिराइव किए नॉर्मल इक्वेशन, उससे करके ट्राई करना है। कर सकते हैं कि नहीं, है ना। और फिर चेक करना है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 100% सेम ही आना चाहिए, है ना। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताना। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो आपकी दोनों मेथड हो जाए इसलिए। ओके डन। तो चलो हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा डेटा है x एंड y मेरा है -1 0 1 2 और y है मेरा -2 1 2 4। चलो हम इसी तरीके से टेबल डिफाइन करते हैं। सो मेरा x है, क्या है मेरा x, लिखा आपने -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। ओके, एंड देन y मेरा है -2 फिर 1 फिर 2 एंड फिर 4। चलो समेशन ऑफ xi मुझे दे दो। चलो क्या होगा इसका एडिशन, 2, है ना, +2, क्योंकि -1 + 0 + 1 0 +2 दैट मीन्स 2। ओके, समेशन ऑफ yi -2 + 1 -1 -1 + 2 1 1 + 4 5। 5. यस और नो? यस। देन यहाँ पे नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना था, xi स्क्वायर। ओके, सो xi स्क्वायर कर रहा हूं, तो देखना यहाँ पे xi स्क्वायर, xi स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, है ना। सो समेशन ऑफ xi स्क्वायर क्या होगा मेरा, 6। ओके, देन नेक्स्ट में क्या आएगा, फोर्थ में मुझे xi yi, है ना। चलो xi yi से सीधा मैं पहले xi क्यूब कर रहा हूं, और ये तो नहीं दिखेगा आपको, ये सॉरी, xi क्यूब कर रहा हूं, देन xi⁴, फिर हम xy वाला करेंगे। चलो xi क्यूब मीन्स -1 का क्यूब, तो -1 आएगा, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8। समेशन ऑफ xi क्यूब क्या होगा बताओ, चलो 8। यस, वेरी गुड। अब xi⁴, सो ये 1 ये 0 ये 1 एंड 2⁴,
16 है ना। तो समेशन ऑफ xi रेज टू 4 व्हाट इज द वैल्यू 18 यस। देन उसके बाद जो मुझे चाहिए था वो xi इंटू वाई आई ले लेता हूँ, दैट मीन्स xi वाई आई। सो xi इंटू वाई आई करेंगे तो क्या आएगा -1 इंटू -2 2 आ जाएगा। देन 0 इंटू 1 0 1 इंटू 2 2 2 इंटू 4 8। सो समेशन ऑफ xi वाई आई बताओ चलो कितना होगा 12 12। उसके बाद क्या बाकी बचा अब देखो ये आ गया फिर यस xi स्क्वायर इंटू वाई आई बाकी बचा, दैट मीन्स xi स्क्वायर इंटू वाई आई क्या होगा तो yi तो -2 इंटू 1 ये दोनों का करना है ना। सो -2 इंटू 1 -2 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 4 इंटू 4 16। ओके अब समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू वाई आई कितना हो जाएगा 16। ओके तो ये हमारा पूरा टेबल रेडी हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारा कॉलम होना चाहिए, वो हमने फाइंड कर दिया। ओके अभी है ना यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो हमने तो ये क्या किया आपको पता चले इसीलिए किया, लेकिन दिस इज योर एक्स स्क्वायर क्योंकि आपको एक्स एंड वाई दिया है ना। दिस इज योर एक्स क्यूब, दिस इज योर एक्स रेज टू 4 एंड दिस इज योर x into y and this is your x square y. This is your correct notation. Okay? So यहाँ पे हमने आपको पता चले इसलिए मैंने इस हिसाब से लिखा है, नहीं आप उसकी जगह पे क्या लिखना है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है लेकिन बुक में आपको इस हिसाब से दिखाई देगा इसलिए। डन। ओके नेक्स्ट चलो अब हमारा फर्स्ट जो हमको कंसीडर करना है जिसमें हमको फिट करना है, तो लेट the equation of the least square quadratic curve B। आप ये जो फिक्स करें उसी हिसाब से नॉर्मल इक्वेशन लेना है, तो डोंट फॉरगेट इट। सो मैंने लिया है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको ऐसे फिट किया। आपको मैंने होमवर्क में क्या किया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, उससे उल्टा करना है सिर्फ आपको। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, देयरफॉर द नॉर्मल इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा होगा नॉर्मल इक्वेशन, जो समेशन i इक्वल टू 1 टू n वाई आई इज इक्वल टू a इंटू n हो जाएगा प्लस b इंटू समेशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई प्लस c इंटू समेशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई स्क्वायर। डन। अब इसको मुझे x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा समेशन i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए। अब इसको xi मत कर देना, n निकल के xi आएगा है ना। सो समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi प्लस b इंटू समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi स्क्वायर प्लस ci समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi क्यूब, दैट इज योर ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 3। अभी एक बाकी बचा एंड क्या करना है अब जो 2 3 आया है उसको फिर से xi से है ना। So summation I equal to 1 to n xi square yi is equal to a summation I equal to 1 to n xi square plus b summation I equal to 1 to n xi cube है ना प्लस ci, सॉरी ci कहाँ से आया c आएगा ना, यस c into I equal to 1 to n xi raised to 4, that is my equation number 4। अब जो भी मुझे टेबल में वैल्यूज मिला है वो मैं 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा है। सो फ्रॉम टेबल and
इक्वेशंस 2 to 4 वन कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं? देखो यहाँ समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n yi, क्या मिलेगा? yi क्या मिलेगा? 5, यस और नो, है ना? ओके, सो 5 इक्वल टू a इंटू n, n मेरा कितना है? 1 2 3 4, कितने हैं? 4, बोलो ना, 4 प्लस b समेशन ऑफ xi कितना हो जाएगा? 2 प्लस b, ये क्या हुआ? xi स्क्वायर करना था ना, गलती कर दी यार। यस, देखो 4 इंटू ए हो जाएगा मेरा, प्लस b इंटू समेशन xi, तो सही तो लिखा था 2, प्लस c इंटू xi स्क्वायर, सो c इंटू 6। ओके, तो फर्स्ट हमारा हो गया। थर्ड के लिए चलो, थर्ड के लिए क्या होगा? बोलो, इक्वेशन क्या मिल रहा है थर्ड? यहाँ पे xi इंटू वाई आई, तो xi इंटू वाई आई है 12, सो 12 इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ xi, xi कितना है? 2, प्लस b इंटू समेशन xi स्क्वायर 6, c इंटू xi क्यूब 8, है ना? और लास्ट इक्वेशन क्या मिलेगा? फोर्थ इक्वेशन xi स्क्वायर वाई आई, सो 16 इक्वल टू क्या होगा? 16 इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b इंटू xi क्यूब मीन्स 8 प्लस c इंटू xi रेज टू 4, दैट मीन्स 18। ओके, अब यहाँ पे वी हैव, देखो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b plus 6c. Here we have 12 is equal to 2a plus 6b plus 8c, and 16 is equal to 6a plus 8b plus 18c. So we have these three equations. So how we can solve this? चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलेगा, चलेगा, कोई भी हिसाब से हमको ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, सो ये इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 5 6 7। चलो 5 6 7 को सॉल्व करना है एवरीबॉडी, चलो ये करो तो सॉल्व। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टू हियर ऑनलाइन में? एनीबॉडी? चलो बताओ, कार्तिक, विजय, पार्थिव, ऋषभ, ओके, पार्थ, निश्चल, जनिल, रमेश, नो डाउट। ओके, चलो तो ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, करो दो। इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, है ना? अगर आपके पास साइंटिफिक कैलसी है तो आप यूज कर सकते हो। देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 2, क्या होगा? 10 इक्वल टू 8a, नहीं उसको नहीं करना है, 6 को करना है ना, 6 को 2 से करना है। यस, तो ऊपर वाला तो एज इट इज, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस 6c, और अभी 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू 4a प्लस 12b प्लस 16c। अब यहाँ पे माइनस 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 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका
-19 इक्वल टू, ये तो 0, यहाँ पे -10b और यहाँ पे -10c। सो आपके पास मिला -10b -10c इज इक्वल टू -19. सो हियर वी हैव b plus c is equal to 19/10. ओके, सो अब b is equal to 1.9 minus c, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना? ओके, और फिर उसको 7 के साथ सॉल्व करो। इससे भी एक अच्छा मेथड है ना आपके पास, कौन सा वाला, क्रैमर्स रूल था ना, वो भी यूज कर सकते हो आप। फिर तीसरा भी मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, वो भी आप यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन वो बहुत लेंथी है। सबसे इजीएस्ट वे कैलकुलेटर, है ना? तो फाइंड कर पाएंगे कि नहीं एवरीबॉडी? यस सर। सॉल्व हो जाएगा ना? थ्री इक्वेशंस ऑफ सिस्टम को सॉल्व करना है, और मैंने आपको बताया देयर आर 3 डिफरेंट वेज। नंबर 1 इज बाय एलिमिनेशन मेथड, नंबर 2 is by Cramer's method, and number 3 is by Gauss elimination method. Okay, so you can use any of this method and find out the value of A and B. So what is the value of A? So A की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 0.25, B की वैल्यू आपको मिलना चाहिए 2.15 एंड C की वैल्यू आपको मिलेगा 0.55। कौन सी वैल्यू मिली आपको? मिली कोई वैल्यू? नहीं। चलो वेरीफाई कर लेंगे आप, तो आगे बढ़ू मैं, यस सर। है ना? ओके, सो वी गो फर्दर। तो चलो यहाँ पे ABC आप वेरीफाई कर लेना, वेरीफाइड। अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताना, आई विल डिस्कस ये। ओके, क्योंकि ये तो प्राइमरी एलिमेंट्री है ना, इसलिए इस सिस्टम को सॉल्व करना हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ होमवर्क, ताकि मुझे भी याद रहे, आपको भी याद रहे। दिस इज योर होमवर्क, है ना? सॉल्व डन। ओके, एंड वेरीफाई दिस वन। सो A, B एंड C मेरे पास आ गया। चलो A एंड B एंड C मेरे पास है, तो क्या करना है? देयरफॉर क्या करेंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड, क्या स्टेटमेंट दिया था? लीस्ट स्क्वायर पैराबोला बोला था ना, लीस्ट स्क्वायर पैराबोला इज। अब यहाँ पे आपने जो कंसीडर किया है उसी में ही आपको सब्स्टिट्यूट करना है ना? अगर आपने जो भी यहाँ पे कंसीडर किया है उसी में ABC रखना है। अगर आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया है तो अकॉर्डिंगली आपके ABC उसी हिसाब से मिल रहे होंगे। डन। तो यहाँ पे हमको ABC इसमें रिप्लेस करना है। सो y इज इक्वल टू a मीन्स मेरा -0.25 minus 2.15 bx plus cx square, that means plus 0.55 x square. So this is my required parabola. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? नो सर। ओके, देखो कहीं पर भी इंटीग्रेशन नहीं है, कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं है, है ना? बहुत इजी ये यूनिट है, तो प्लीज इसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज या थोड़ा होमवर्क कर लेना, है ना, और थोड़ा देख लेना। ओके, कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लेना। चलो, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल ऑनलाइन में? एनीबडी? Please inform student. No, Any sir. doubt, any No question? doubt. Okay, so then we go for the second example. You can see, देखो फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन यहीं पे है ना? वही हमने डिस्कस किया। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जांपल। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर पैराबोला टू द गिवन डेटा। ओके, फिट द लीस्ट स्क्वायर पैराबोला टू द गिवन डेटा। एक्स एंड वाई है मेरा 0, 1, 2, 3, 4 और वाई है मेरा 1, 1.8, 1.3, 2.5, 2.3। ओके, तो चलो स्टार्ट करें।
है ना। कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम इक्वेशंस फिक्स करेंगे, देन वी डिफाइन द नॉर्मल इक्वेशन एंड देन वी गो फॉर द टेबल। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा x एंड y क्या दिया था, x से मेरा 0 1 2 3 एंड 4, ये मेरा 1 1.8 1.3 2.5 एंड 2.3, यस और नो। ओके, चलो इसके लिए मैं आपको जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो यहाँ पे कर्व फिक्स कर रहा हूँ, चलेगा ना। ओके, सो कंसीडर if we let the equation of the least quadratic curve b, मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, मैंने थोड़ा उससे उल्टा फिक्स किया लेकिन क्वाड्रेटिकली आया। ओके, वो थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन क्या होंगे, सो देयरफॉर normal equations are क्या हो जाएंगे, फर्स्ट के लिए समेशन ऑफ वाई आई आई इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू, इसको हम 1 बोल देंगे, a इंटू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई प्लस c इंटू n आ जाएगा, है ना। दैट इज योर नंबर 2। चलो थर्ड के लिए क्या करेंगे, i equal to 1 to n xi yi means multiply by xi to each term. So a into summation I equal to 1 to n xi cube plus b into summation I equal to 1 to n xi square plus c into summation I equal to 1 to n xi। तो ये मेरा नंबर 3 आ गया। नंबर 4 क्या आएगा, एंड summation I equal to 1 to n xi square into yi, yes or no, xi स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर से, so a into summation I equal to 1 to n, this will be xi raised to 4 plus b into summation I equal to 1 to n xi cube plus c into summation I equal to 1 to n xi square, that is number 4. So is there any doubt, any question in step number 1? ये तो हर एक एग्जाम्पल में हम करते हैं, है ना। अब हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस है, हमने कर्व भी फिक्स कर दिया है, तो अब क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, टेबल, है ना। चलो टेबल डिफाइन करते हैं। सो टेबल के लिए फर्स्ट मेरे पास x एंड y है, सो आई हैव द वैल्यू ऑफ x y। तो x की वैल्यू है मेरे पास 0 1 2 3 एंड 4। 0 के लिए y मेरा 1 है, y के लिए 1.8 है, यहाँ पे 1.3 हो रहा है, फिर 2.5 हो रहा है, देन 2.3 हो रहा है। ओके, तो ये दोनों डेटा हमारे पास होता है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4 एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई, इतना मुझे चाहिए। ओके, सो एक्स स्क्वायर मीन्स ये सभी का स्क्वायर, सो 0 1 4 9 एंड 16। एक्स क्यूब मीन्स इसका क्यूब 1 8, ये हो जाएगा 27 एंड 4 का क्यूब कितना होगा 64। एक्स रेज टू 4 क्या आएगा 0 1 4 रेज टू 4, क्या होगा 16 कहां से, ओके एक्स रेज टू 16। मैं नीचे के बारे में सोच रहा था, 3 रेज टू 4 81, यस, एंड 4 रेज टू 4 256। ओके, देन x इंटू वाई, ये दोनों का प्रोडक्ट, सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.8, ये 1.3 इंटू 2, सर x इंटू वो आएगा, सॉरी x इंटू वाई 0 आएगा सर। एक्स स्क्वायर
एक्स वाई जीरो आएगा, हाँ यस सॉरी, एक्स वाई जीरो। इन्होंने कुछ ऐसा तो किया लेकिन मुझे उस टाइम पे डाउट हुआ कि कौन से एंट्री में गलती है। इन्होंने नाम भूल गया मैं। यस आपने किया ना इसे, हाँ उस टाइम पे वो बोले नहीं। 1.8 फिर 1.3 इंटू टू कितना हुआ 2.6, 2.5 इंटू थ्री 7.5 एंड 2.3 इंटू फोर 9.2। ओके एक्स स्क्वायर वाई, चलो एक्स स्क्वायर इंटू वाई ये दोनों को साथ में दैट मीन 0, ये हो जाएगा 1.8, ये 4 इंटू 1.3 5.2, सही लिखवा ना। 9 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना 22.5 सही है। देन 16 इंटू 2.3 36.8। ओके तो ये हमारा टेबल तो बन गया, लेकिन इसमें समेशन ऑफ एक्स आई, चलो इसका एडिशन करो कितना आ रहा है 10, 10, समेशन ऑफ वाई आई 8.9, 8.9, वेरी गुड, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर नहीं मिला 30 है ना। यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई क्यूब 100, समेशन ऑफ एक्स आई रेज टू 4 354 है ना। देन समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई 21.1, वेरी गुड, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू वाई आई आई थिंक 66.3। चेक करना, एवरीबडी मस्ट बी चेक। ओके 65.5 आया। चलो दूसरा किसी को आंसर आ रहा है, फिर से चेक करो तो। थ्री आ रहा है ना, ओके 66.3। ओके ये अगर आपका गलती हुआ ना तो पूरा गलत है ना, क्योंकि ये सभी एंट्री के ऊपर ही हमारे नेक्स्ट इक्वेशन डिपेंड है। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 2, 3 and 4 सॉरी 2, 3, 4 एंड टेबल भी आएगा ना, एंड टेबल फर्स्ट। चलो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा बताओ, एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यस सो क्या आएगा समेशन ऑफ वाई आई मेरा कितना है 8.9 इक्वल टू ए एक्स आई स्क्वायर कितना आएगा 30, सो इनटू 30 प्लस बी समेशन ऑफ एक्स आई मेरा है 10 प्लस सी इंटू एन कितना है यहाँ पे 5 है ना, सो 5 है यहाँ पे। इसे 4 काउंट करके 4 मत कर देना नहीं तो गए है ना, क्योंकि 0 भी एक ऑब्जर्वेशन ही है। ओके एक डेटा ही है। देन नेक्स्ट एक्स आई इंटू वाई आई के लिए, सो एक्स आई इंटू वाई आई मेरा 21.1 इक्वल टू क्या आएगा ए एक्स आई क्यूब है मेरा 100 प्लस बी एक्स आई स्क्वायर कितना है मेरा 30 एंड सी कितना है सी इंटू एक्स आई मेरा है 10। ओके एंड लास्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सो एक्स आई स्क्वायर वाई है दैट मीन 66.3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एक्स आई रेज टू 4 दैट इज योर 354 प्लस बी एक्स आई क्यूब मीन्स 100 प्लस सी एक्स आई स्क्वायर मीन्स मेरा 30। ओके अब इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं। सो 8.9 इक्वल टू 30a प्लस 10b प्लस 5c then 21.1 equal to 100a plus 30b plus 10c
66.3 is equal to 354A, 100B, 30C. So these are the equations for the solution. Next is 5, equation number 5, 6 and 7. Okay, solve these equations. What do we get? चलो इसके सॉल्व करो. After solving equations 5 to 7, we will get. ओके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, कर देंगे ना? पता नहीं करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं चेक तो करूंगा. A इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस पॉइंट, सॉरी A नहीं आएगा, ये मेरा C होगा. हाँ, क्योंकि मेरा जो अंदर आंसर है. ओके, तो A, B एंड C. तो आपका A आएगा यहाँ पे 1.07714, आपका B आएगा 0.41571 एंड C आएगा आपका माइनस 0.02143. सो A, B, C ये मिलने चाहिए. ओके, तो चेक इट, वेरीफाइड. Therefore, the required least, क्या लिखा था स्टेटमेंट में? लीस्ट स्क्वायर पैराबोला इज y इज इक्वल टू, हमने कहां से स्टार्ट किया था? ax स्क्वायर से. सो ax स्क्वायर मीन्स मेरा 1.07714 x square plus bx, that means 0.41571 plus c, so minus 0.02143. Okay, everybody understand? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt, any question? No, sir. यहाँ पे x छूट गया. Yes. So this method is known as the least square parabola fitting. Okay, fitting of the least square parabola. So is there any doubt, any question? Offline में नहीं है ना स्वामी? Okay, online में is there any doubt, any question? No, sir. Okay, so देखो next topic is about the fitting curves of the form y is equal to a b raised to x. सर कल पढ़ाए तो अच्छा है, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? हाँ, मैं वही सोच रहा था, कोई बोलेगा नहीं लेकिन मुझे ही बोलना पड़ेगा, है ना? ओके, डोंट वरी. देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमने किए. सो 2 एग्जांपल में कहीं पर भी डाउट है किसी को भी, कोई भी स्टेप में? एनीबॉडी? कार्तिक, विजय, पार्थिव, ऋषभ, निश्चल, जैनिल, रमजान No, खान, ओम. no, sir. ओके, सो वी स्टॉप हियर, है ना? क्योंकि